السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ارحان کے جانے کے بعد شہنشاہ کہتا ہے آپ خاموش ہیں کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے، لیکن وہ غلط راستے پر ہے۔ آپ دیکھتے نہیں علاؤالدین صاحب؟ جرکتے غصے سے کہتا ہے تم حد سے آگے بڑھ گئے ہو شہنشاہ۔ اوچی کہتا ہے یہ تمہارا ارحان صاحب ہے جو حد سے آگے گیا ہے۔ برہان کہتا ہے رک جاؤ اوچی صاحب، یہیں رک جاؤ، جو تم نے ابھی کہا یہ تمہاری حدود سے باہر ہے، ہوشیار رہو۔ اوچی کہتا ہے برہان صاحب۔ علاؤالدین گرجتے ہوئے کہتا ہے بس بہت ہو گیا۔ برہان صاحب اور جرکتے صاحب آپ دونوں لشکرگاہ میں اپنی پوری طاقت سے شہنشاہ صاحب کی حمایت کریں گے۔ یہ سن کے ان دونوں کو بہت غصہ آتا ہے۔ علاؤالدین مزید کہتا ہے یہ اب آپ کا کماندار ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے، اور فوج جتنا جلدی ممکن ہو حملے کے لیے تیار ہو جائے گی، جتنی جلدی ممکن ہو۔ باہر ارحان کے ساتھی گھوڑوں کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ کارا خلیل بلبان سے کہتا ہے خیر تو ہے؟ تو بلبان کہتا ہے سردار بننا مشکل ہے، ایک کے بعد ایک جرگہ، یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو کارا خلیل کہتا ہے ظاہر نہیں ہے، سیاست دماغ مانگتی ہے، صبر مانگتی ہے، ایک سردار کو اپنے الفاظ تلوار کی طرح نہیں چلانے چاہیے۔ بلبان کہتا ہے میں کھل کر بولتا ہوں بھائی، دوسرے صاحب بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن میں لڑتا ہوں۔ کارا خلیل کہتا ہے خوش ہوں کہ تم لڑتے ہو بھائی، بہت خوشی ہے، ورنہ 2 دن میں سرداران کو سخت مقابلہ کرنا پڑتا، اس لیے میں درسن کاٹھی لا کے گھوڑے پہ رکھ دیتا ہے۔ تو کارا خلیل کہتا ہے کہتے ہیں کہ تم گھوڑوں کے ماہر ہو۔ تو درسن کہتا ہے ایسا ہی ہے، در حقیقت میں سن سکتا ہوں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کارا خلیل کہتا ہے بلبان کو بھی اس کے بارے میں مت سکھاؤ، ورنہ پاگل آدمی گھوڑے بھی خراب کر دے گا۔ اس لیے میں ارحان وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے یہ دوبارہ ہمارا کام ہے سپاہیوں، جرگہ بورسا کی فکر کرے، لیکن میری فکر عثمان صاحب اور فاطمہ بہن ہے، کیا تم ایک بار پھر لڑائی کے لیے میرے ساتھ شامل ہوگے؟ تو سپاہی کہتے ہیں آخر تک حضور، آخر تک۔ ارحان کہتا ہے بہت شکریہ، ہمارا راستہ لمبا ہے اور لڑائی قریب ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں اور قبیلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت فاطمہ ایک ندی سے پانی بھر رہی ہے۔ فلاویوس بیس بدلے چھپ کے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں خاتون آ کر پوچھتی ہے کیا کوئی حکم ہے فاطمہ خاتون؟ تو فاطمہ کہتی ہے گھوڑوں کو پانی پلانے کے بعد انہیں تھوڑا آرام کرنے دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ خاتون چلی جاتی ہے۔ فاطمہ ہاتھ صاف کر ہی رہی ہوتی ہے کہ فلاویوس اس کے بالکل سر پہ آ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہارے خوبصورت ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ ایک دم سے خنجر نکالتی ہے اور اس کے گلے پر تان لیتی ہے، پھر کہتی ہے تمہیں ان ہاتھوں سے تھپڑ بھی پڑ سکتا ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ تو فلاویوس کہتا ہے بس ایک غریب تاجر جو اپنے گھوڑے کو پانی پلانے آیا تھا، جب گھوڑے کو پانی کی خوشبو محسوس ہوئی تو وہ تمہارے قافلے کی طرح مجھے بھی یہاں لے آیا، مجھے خوشی ہے کہ وہ لے آیا۔ فاطمہ پوچھتی ہے تمہارا کیا ارادہ ہے، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ تو فلاویوس کہتا ہے اگر تم مجھے مارنے والی ہو تو کم از کم مجھے اپنا نام بتا دو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ مجھے کس فرشتے نے مارا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے میں نے پوچھا تم کہاں سے آ رہی ہو؟ فلاویوس جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے میں کائی قبیلے سے آ رہا ہوں اور میں ایک تاجر ہوں، میں نے خواتین کو کچھ کپڑے بیچے ہیں لیکن کافی نہیں بک سکے، تم جانتی ہو جنگ کا وقت ہے۔ فاطمہ کہتی ہے اگر تم کائی قبیلے سے آ رہے ہو تو مجھے بتاؤ وہاں کیا صورتحال ہے۔ فلاویوس ہنستے ہوئے کہتا ہے اگر تم خنجر ہٹا لو تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ ساتھ ساتھ بازو میں سے اپنا بھی خنجر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر فاطمہ خنجر پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہے بولو۔ فلاویوس کہتا ہے حالات پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں، عثمان صاحب نے ارحان صاحب کو برطرف کر دیا ہے، انہوں نے ان کی جگہ شہنشاہ صاحب کو مقرر کیا ہے۔ یہ سن کے فاطمہ چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کیا؟ تو فلاویوس کہتا ہے اس کے علاوہ جب میں چلا تو عثمان صاحب کی حالت ٹھیک نہیں تھی، کہتے ہیں کہ حالت سنگین ہے، اللہ عثمان صاحب کی حفاظت کرے اور کائی کے تمام لوگوں کی بھی۔ یہ سن کے فاطمہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، مگر خنجر اس کے گلے پہ تانتے ہوئے کہتی ہے میں تمہیں یہی مار کر جانوروں کو کھلا سکتی ہوں، میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ فلاویوس انجان بنتے ہوئے کہتا ہے کیا تم عثمان صاحب کی بیٹی ہو؟ فاطمہ کہتی ہے میں نے پوچھا میرے بابا کو کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں فاطمہ کی جنگجو خواتین وہاں پہنچ جاتی ہیں، مگر فاطمہ انہیں روک دیتی ہے۔ فلاویوس بھی خنجر واپس بازو میں چھپا لیتا ہے اور کہتا ہے عثمان صاحب کو بیماری نہیں ہے، بس کچھ اور ہے، وہ بے ہوش ہیں۔ فاطمہ پریشان ہوتے ہوئے آگے بڑھتی ہے تو فلاویوس اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے آپ پانی کی بوتل بھول گئی ہیں، پھر بوتل دیتے ہوئے کہتا ہے میرا نام اکچورا ہے، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بری خبر سنائی۔ فاطمہ بوتل لیتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ ان کے جاتے ساتھ ہی فلاویوس کے آدمی باہر نکل آتے ہیں اور فلاویوس ان سے کہتا ہے چابدار لوگوں کو بتاؤ کہ قافلے کے چلنے سے پہلے کارروائی کریں، لیکن مجھے یہ لڑکی زندہ چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اس کے آدمی چلے جاتے ہیں
उधर उरहान तेजी में अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और एक मुकाम पे निशानात देखते हुए कहता है, काफिले के निशानात बहनों के घोड़ों के निशानात के साथ मिले हुए हैं, लेकिन ये निशानात मुख्तलिफ हैं। लगता है कि कोई और भी उनके पीछे है। हम अगर मामूल के रास्ते से गए तो हमें देर हो जाएगी, हम जंगल से गुजरेंगे, शाबाश। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब घोड़े दौड़ा देते हैं। उधर फातिमा खवातीन के साथ काफिले तक जा पहुंचती है और वो रवाना होने ही लगते हैं कि यगीद सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है। उसे देखकर फातिमा कहती है, खैर हो यगीद साहब। तो यगीद कहता है, मुझे बाबा ने काफिले की हिफाजत के लिए भेजा है, खुश आमदीद। फातिमा पूछती है, मेरे भाई को ओहदे से माजूल करने के बाद इस सब के बारे में सोचना तुम्हारे बाबा के लिए क्या यही रह गया है? मेरे बाबा कैसे हैं? यगीद घोड़े से उतरता है और उसके पास आता है। फ्लावियोस सिपाहियों के साथ छुप के सारा मंजर देख रहा होता है और यगीद फातिमा से कहता है, कहते हैं कि बुरी खबर बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन लगता है कि आपको नहीं मालूम। उस्मान साहब की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। फ्लावियोस अपने साथियों से कहता है, मैदान सबसे पहले चावदार का है और फिर हमारा है। पास ही में यगीद फातिमा से कहता है, उस्मान साहब कितने ही मुश्किल लम्हात से गुजरे, आप परेशान ना हो, वो इस मुसीबत को भी शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। फातिमा कहती है, यकीनन अल्लाह के हुक्म से शिकस्त देंगे, मेरे बाबा मजबूत हैं। इसी लम्हे चावदार के सिपाही झाड़ियों से निकलते हैं और उन पर तीर बरसा देते हैं। सिपाहियों को तीर लगता हुआ देखकर फातिमा चिल्लाते हुए कहती है, हमला हुआ है, अपनी जगह संभालो। वो सब एकदम से इसार बना लेते हैं, मगर बहुत से सिपाही तीरों की जद में आ जाते हैं। तीर गोली की रफ्तार से चलते हैं और शदीद तीरंदाजी के बाद वो तलवारें लेके उन पे चढ़ दौड़ते हैं। फातिमा, यगीद और सिपाही भी दिफा में लग जाते हैं और भरपूर मुकाबले की कोशिश करते हैं, मगर चावदार के सिपाही तादाद में काफी ज्यादा होते हैं और फातिमा के सिपाही मुसलसल शहीद होते ही चले जाते हैं। यगीद बड़ी बहादुरी से लड़ता है और एक साथ कईयों को पिछाड़ देता है, मगर जैसे ही पलटता है उनमें से एक तलवार यगीद के पेट में घुसा देता है। जख्मी होने के बावजूद यगीद खुद को संभालता है और उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। फिर उठता है मगर गिर जाता है। यगीद को जख्मी देखकर फातिमा सामने मौजूद काफिरों को जहन्नुम वासिल करती है और यगीद की जानिब बढ़ती है। फिर उसे सहारा देते हुए कहती है, हम पीछे हट रहे हैं। ये कहते साथ ही वो उसे सिपाहियों के हवाले कर देती है। उन्हें पीछे हटते हुए देखकर फ्लावियोस कहता है, ये चावदार जंगजू अच्छे निकले, मेरे अंदाजे से भी कम वक्त लगा। अब ये बाकी रह जाने वालों को देखें, हम जाकर काफिला ले जाते हैं। ये कहते साथ ही फ्लावियोस आगे बढ़ जाता है। कबीले में हलीमा बहुत परेशान होती है। दरसुन घोड़ा उसके पास लेकर आता है और घोड़ी से कहता है, मेरी बेटी, अपनी मालकिन को सलाम कहो। घोड़ा झुकता है। हलीमा परेशानी होती है तो दरसुन कहता है, नहीं बेटी, हम सरदार ज़ादी को हंसा नहीं पाई। इसी लम्हे आइकुत उनके पास आता है और हलीमा से कहता है, मैंने ऐसा बहादुर और काबिल आदमी पहले कभी नहीं देखा। अगर सरदार मंजूर करें तो मैं इस बहादुर को अपने पास देखना चाहता हूँ। तो हलीमा कहती है, जरा बाबा से एहतियाब हो जाए तो मैं उनसे बात करूंगी। ये सुनते साथ ही आइकुत चला जाता है और हलीमा दरसुन से कहती है, मैंने अपनी माँ और बाबा के घोड़ों के साथ बंधन को देखा। उनके और घोड़ों के दरमियान ऐसा ताल्लुक था कि वो एक नजर से समझ जाते और एक सांस से पुरस्कून हो जाते। मेरे पास अभी तक ऐसा घोड़ा नहीं है। दरसुन कहता है, शायद आपको अभी तक आपको समझने वाला शख्स भी नहीं मिला है। घोड़े इंसानों जैसे होते हैं, वो सिर्फ अपने जैसा दिल रखने वालों को अपना साथी बनाते हैं। उस्मान साहब का घोड़ा एकदम से उछल पड़ता है। हलीमा उसकी जानिब बढ़ती है तो दरसुन कहता है, उस्मान साहब का घोड़ा इन दिनों परेशान है, ये भी यकीनी तौर पे अपने मालिक को महसूस करता है। हलीमा कहती है, मैं हमेशा मेरे बाबा का दिल पहाड़ों की तरह गैर मुतजलजल समझती थी। हलीमा के जाने के बाद दरसुन अपने सिपाही के पास जाता है और सिपाही कहता है, कारसी साहब ने लश्कर जमा करना शुरू कर दिया है। वो काई कबीले के खिलाफ ऐलान जंग करने का इरादा रखते हैं। तो दरसुन कहता है, लगता है मेरे बाबा और भाई ने ज़हन बना लिया है। यहाँ चीजें पेचीदा हैं। उस्मान साहब बिस्तर मर्ग पर हैं, अलाउद्दीन नशिस्त पर विराजमान है और खान के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। काई कबीला उबल रहा है, उनका एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्ता होना बहुत करीब है। वक्त आ रहा है ईसा, वक्त आ रहा है, अब शाबाश किसी की नजरों में आए बगैर यहाँ से जाओ। ये सुनते साथ ही ईसा चला जाता है। जंगल में उरहान अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहा है कि एक तरफ से शोर की आवाज सुन के घोड़े मोड़ते हुए कहता है, उस तरफ। उधर फातिमा और यगीद सिपाहियों और खवातीन के साथ मुसलसल भाग रहे हैं। चावदार के सिपाही उनके पीछे पीछे होते हैं और पीछे उनकी लाशें भी गिराते जाते हैं। खवातीन और सिपाही मुसलसल कटते मरते चले जाते हैं और फातिमा यगीद के साथ आगे बढ़ती जाती है। इधर कबीले में मनून खातून नीलुफर के साथ उस्मान साहब के पास मौजूद होती हैं और कहती हैं, जो मैंने सुना है वो फूट के आसार हैं। अगर ऐसे ही जारी रहा तो उस्मान को इस हालत तक पहुंचाने वालों को वो मिल जाएगा जो चाहते हैं। नीलुफर कहती है, उरहान इस खेल को बिगाड़ेगा, मैं जानती हूँ। वो गद्दार तबीब मर गया है, लेकिन रस्सी का सिरा हमारे हाथ में है।
मलून खातून कहती हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे लग रहा था कि तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, लेकिन तुमने मुझे हैरान कर दिया। बिलाखिर तुम्हारी जिद किसी काम तो आई मेरी बेटी। नीलुफर कहती है, बाबा हमेशा कहते हैं कि बुराई में भी अच्छाई ढूंढो। शायद ये तकलीफ हमें सिखाएगी कि हमें एक दूसरे पे भरोसा करना चाहिए। इसलिए मैं अलाउद्दीन वहाँ पे आता है और तेजी से उस्मान साहब की हालत का जायजा लेता है। फिर कहता है, ये ऐसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीलुफर पूछती है, अलाउद्दीन तुम क्या करोगे? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं इनके जख्मों से गंदा खून निकालूंगा, आप लोग बाहर जाएं। मलून खातून परेशान हो जाती हैं तो नीलुफर उन्हें लेकर चली जाती है और अलाउद्दीन इलाज शुरू कर देता है। दूसरे खेमे में मलून खातून बहुत गमगीन हो जाती हैं तो नीलुफर उनसे कहती है वो अलाउद्दीन साहब के सुपुर्द हैं, बाबा ठीक हो जाएंगे। इसलिए में गोंचा दीदार के साथ वहाँ आती है और पूछती है, बाबा कैसे हैं? तो मलून खातून उससे कहती है, अलाउद्दीन उनके पास है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश से वो ठीक हो जाएंगे। दीदार कहती है, माशाल्लाह अलाउद्दीन सल्तनत को भी संभाल रहा है और अपने बाबा को भी। हम ये सब कुछ किसी जिद्दी के साथ नहीं कर सकते थे। ये सुनते साथ ही नीलुफर भड़क जाती है और कहती है, जिद्दी आदमी कौन है दीदार खातून? साफ साफ बोले, तुम्हारे सरदार को वो मिल गया जो सालों से मांग रहा था, तुम्हें और क्या चाहिए? गोंजा कहती है, मुझे नहीं मालूम कि दीदार खातून क्या चाहती हैं, लेकिन जब से अलाउद्दीन को ये जिम्मेदारी मिली है तुम क्यों नाराज हो नीलुफर? क्या ये भाईचारा है? मलून खातून गुस्से से कहती हैं, उस्मान साहब अंदर मौत से लड़ रहे हैं, तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? दीदार कहती है, हम सिर्फ इसलिए इस गुस्से के मुस्तहिक हैं कि अलाउद्दीन साहब और शहंशाह साहब अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। क्या ये हमारी इत्तेहाद को दरहम भरम नहीं करेगा मलून खातून? मलून खातून गुस्से से कहती हैं, अपनी जबान को काबू में रखो, कायों की भलाई मेरे बेटों के इत्तेहाद और इनकी नस्ल पर मुनहसर है। मेरे बेटे मेरे पर हैं, अगर वो गलत हवाओं में चलेंगे तो मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। गोंचा कहती है, अलाउद्दीन कभी गलत नहीं। तो मलून खातून कहती है, बस गोंचा बस, बहुत हो गया। हम वो कौम हैं जो अल्लाह के हुक्म पर जान भी कुर्बान कर देती है। दुनिया की ताकत हमारे ईमान के आगे कुछ नहीं। न हमें तख्त का लालच है, न ताज की ख्वाहिश। हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं।